بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں معین احمد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہیلتھ سیکرٹری ساجد جاوید کہتے ہیں اومیکرون کے مریضوں کے سبب ہسپتالوں کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ گزشتہ ہفتے متاثرہ مریضوں کی تعداد 18,000 ریکارڈ کی گئی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا مستحق افراد کے لیے مفت قانونی امداد کا اعلان۔ معروف قانون دان انعام رانا کے ساتھ فلاحی معاہدہ طے کر لیا۔ جولیا اینڈ رانا فرم تارکین وطن کی قانونی معاونت کرے گی۔ والسل کے چرچ میں کرسمس کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں کرسچن پاکستانی کمیونٹی کی فیملی سمیت شرکت۔ شرکاء کرسمس اور کلچرل گیت پر محظوظ ہوئے۔ آئندہ سال کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں۔ سینٹرل لندن میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد۔ اسلامی عقائد اور محکم یقین پر گفتگو کی گئی۔ کانفرنس سے مولانا تقی عثمانی کا آن لائن خطاب۔ ختم نبوت پر مدلل گفتگو۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کہتے ہیں کوئی اور ملک تیار نہ ہوا تو اکیلے ہی ایران پر حملہ کر دیں گے۔ اسرائیل کی امریکہ اور ایران کے مابین جوہری معاہدے پر مذاکرات پر کڑی تنقید۔ اور ICC کا کرکٹر آف دا ایئر کی نامزدگیوں کا اعلان۔ پاکستان کے نامور کھلاڑی محمد رضوان کو کرکٹر آف دا ایئر میں نامزد کر لیا گیا۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. Fido Nido and Arabica Cafe provide a warm and friendly environment, giving essential food and provisions to the most vulnerable members of our community. Donate to help local communities today. جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانوی ہیلتھ سیکرٹری ساجد جاوید کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہسپتالوں کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے سیکرٹری صحت ساجد جاوید نے برطانیہ میں کرونا کیسز کی تعداد میں ایک بار پھر اضافے اور اومیکرون کے حالیہ پھیلاؤ پر عوام کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ انفیکشن میں تیزی سے اضافے کے بعد ہسپتالوں کو سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لندن کے ہسپتالوں میں داخلوں کا سلسلہ 90% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ نئے سال کے آغاز پر صورتحال برقرار رہی تو کووڈ کی نئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق 1.4 ملین افراد وائرس سے متاثر ہیں۔ ہے کہ موسم سرما میں NHS اضافی دباؤ کے باعث ایمرجنسی صورتحال کا سامنا کر سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 18,000 ریکارڈ کی گئی ہے، جو اس سے ایک ہفتہ قبل 12,240 تھی۔ لندن میں انفیکشن کی وجہ سے غیر حاضریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ ہسپتالوں میں حالیہ کووڈ کیسز میں سے 15% ایسے مریض ہیں جو پہلے کسی اور مرض کے لیے ہسپتال میں داخل تھے۔ لندن میں یہ تعداد 24.4% سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن ممکنہ طور پر لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے سمیت دیگر اہم پابندیوں کے بارے میں اعلان کر سکتے ہیں۔ حکومتی سائنسدانوں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ اقدامات مارچ تک برقرار رکھے جا سکتے ہیں۔ لندن NHS کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق انفیکشن کے پھیلاؤ میں سر فہرست ہے۔ ماہرین صحت
صدارت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر صورتحال برقرار رہی تو ہسپتالوں پر شدید دباؤ بڑھ سکتا ہے، جبکہ وزیر اعظم ممکنہ طور پر پابندیاں لگا سکتے ہیں جس سے معیشت بھی دباؤ کا شکار ہوگی۔ تاہم ممبران پارلیمنٹ اور کابینہ کے وزراء کووڈ کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے پابندیوں کے استعمال پر شکوک و شبہات رکھتے ہیں کہ آیا یہ اعداد و شمار مزید پابندیوں کا جواز پیش کرتے ہیں۔ سیکرٹری ہیلتھ نے مزید بتایا کہ ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ بوسٹر تقریباً 56.9% برطانیہ میں لگ چکی ہے، جبکہ پازیٹیو رزلٹ آنے کے باوجود لوگ ریکور ہو رہے ہیں۔ اموات کی تعداد کم ہے، تاہم ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسین کا عمل تیز کر کے لوگوں کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جائے تاکہ وہ بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے نواحی علاقے والسل کے 7th ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ میں کرسمس کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرسچن پاکستانی کمیونٹی نے فیملیز کے ساتھ شرکت کر کے کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منایا۔ تقریب میں کلچرل گیت گائے گئے جسے شرکاء خوب محظوظ ہوئے۔ جاوید عنایت رپورٹ کریں گے۔ 25 دسمبر کو دنیا بھر میں مسیحی برادری گرجا گھروں، شہروں اور مختلف جگہوں کو روشنیوں اور کرسمس ٹری سے سجانے کے ساتھ ساتھ مختلف رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کرتی ہے۔ اس سلسلے میں برمنگھم کے نواحی علاقے والسل کے SDA چرچ میں ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مڈلینڈز بھر سے اوورسیز پاکستانی کرسچن کمیونٹی رہنماؤں نے اپنی فیملیز کے ساتھ بھرپور شرکت کر کے کرسمس کی خوشیاں منائی۔ اس دوران کرسمس اور کلچرل گیت پیش کیے گئے جن سے حاضرین خوب محظوظ ہوتے رہے۔ اس موقع پر منتظمین پاسٹر انوپ گل، ایلڈر بابر شاکر، کوائر لیڈر رفیق رچرڈ، فرینک یونس، سموئل سلطان، شکیل خرم گل، اجمل چغتائی، افضل چغتائی، جبران سموئل، سنجے گل اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کرسمس کے موقع پر ہم پوری دنیا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ اس موقع پر ہم اتحاد، اتفاق اور محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں بسنے والی مسیحی برادری کو کرسمس مبارکباد کے ساتھ یہ دعوت دیتے ہیں کہ آج ہماری خوشی کا دن ہے، اس کو ہم مل کر منائیں گے تو آنے والی نسلوں کو ایک اچھا میسج جائے گا۔ اس دوران ایلڈر بابر شاکر، پاسٹر انوپ گل، پاسٹر اجمل چغتائی اور دیگر نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کرسمس ڈے کے موقع پر ہم کرسچن پاکستانی اپنے وطن کی سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم برطانیہ میں بھی تمام اوورسیز پاکستانی ایک جگہ جمع ہو کر اسی طرح کرسمس مناتے ہیں جیسے اپنے ملک میں مناتے تھے اور دنیا بھر میں محبت اور پیار کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم پاکستان کے لیے، انگلینڈ کے لیے اور پوری دنیا کے امن کے لیے اور شفا کے لیے آج ہم نے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ ہم آج اس موقع پر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں اس خوشی دے موقع تے تمام مسیحی قوم نو مبارکباد دینا وا تے میری یہ دعا ہے کہ یہ نیا جڑا کرسمس ہے تے نواں سال آن والا وے، اس خدا سانو سب نو سلامت رکھے۔ ہم جو دیار غیر میں کرسچن لوگ رہتے ہیں، ہماری یہ خوشی ہوتی ہے کہ اسی طرح سے سیلیبریٹ کریں جس طرح سے ہم جوش و خروش کے ساتھ اپنی کنٹری میں کرتے ہیں، اور کرسمس کا جو مطلب ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائیں، اور وہ مطلب ہے پیار، محبت۔ اور میری یہ دعا ہے کہ پاکستان کے اندر امن، سکون، سلامتی آئے، نہ صرف کرسچنز کے لیے بلکہ میں پوری دنیا کے لیے میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یہ پیس کا دن ہے، امن کا دن ہے، لو کا دن ہے۔ جو میسیج کرسمس کا ہے وہ 3 ٹائمز آج دنیا میں اس کی ضرورت ہے، شانتی کی، امن کی، پیار کی، محبت کی، اور یہی سب کرسمس کا مطلب ہے۔ کرسمس مینز لو، Christmas means peace, Christmas means joy. To just say Merry Christmas to everyone in Pakistan and in UK. Merry Christmas to everyone in this whole world. Merry Christmas to everyone. میری طرف سے تمام میرے مسیحی بہن بھائیوں کو جو پوری دنیا میں، پاکستان میں، انگلینڈ میں، جہاں جہاں بھی ہیں، سب کو میری طرف سے کرسمس کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ آخر میں دعائیہ کلمات کے ساتھ تقریب کا اختتام ہوا اور شرکاء میں کرسمس ڈنر کو تقسیم کیا گیا۔ دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی کرسچن کمیونٹی کرسمس کے موقع پر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جاوید عنایت، CNN نیوز، لیسٹر۔
دریال کی 11 سالہ بچی کنول مطلوب کو اغوا اور زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں کنول مطلوب ایکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کیس کے فائنل ہونے تک اس کو فالو کرنے کا فیصلہ کیا گیا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. کنول مطلوب الیکشن کمیٹی برطانیہ کی تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور سول سوسائٹی کو کشمیر کی بیٹی کو انصاف دلانے کی جنگ میں کامیابی کے لیے ایک انتہائی اہم اجلاس برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد ہوا، جس پر کشمیر کی بیٹی کنول مطلوب کے کیس کے حوالے سے بہت اچھی تجاویز سامنے آئی کہ کیسے اب اس کیس پر نظر رکھنی ہے اور اس شفاف قاتل کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. جبکہ اس قطعی غیر سیاسی اور غیر مفاداتی تحریک نے آزاد کشمیر کے عوام کو ایک امید کی کرن دکھائی ہے، اور جس طرح پورے آزاد کشمیر سے مظلوم اور بے زبان لوگوں کو ایک مضبوط آواز اور ایک مکمل غیر جانبدارانہ پلیٹ فارم ملا ہے، اس کیس کے مجرمان کی سزا کے بعد باقی دیگر معاملات پر بھی توجہ مرکوز کرنے کا ارادہ ہے. اس میٹنگ پر دوستوں کے مشورے یقیناً مفید ثابت ہوں گے. اجلاس میں سید فرد کاظمی، صدائے حق پارٹی کے اشفاق فاضل، الف نیوز کے نعیم چوہان، 92 نیوز اور CNI نیوز کے ایڈیٹر ان چیف سید عابد کاظمی، JK TV کے واحد کاشر، لائیو TV کے محمد خان، دنیا نیوز برمنگھم کے ناصر محمود راجہ اور سوشل ایکٹیوسٹ ملک مظہر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیس کا فیصلہ ہونے تک اس کو فالو کرنے اور لوگوں کے سامنے حقائق بیان کرنے اور ان کو میڈیا میں لانے کا فیصلہ کیا. ایکشن کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آج کے دور میں بھی وہ آدمی ہیں جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اسی طرح کا واقعہ زینب کیس ہوا تھا، اس پر مجھے اس پبلک سے جو پاکستانی پبلک یہاں اوورسیز میں رہتی ہے ان سے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سپورٹ اس بچی کی نہیں کی. اس بچی کو انصاف مل جائے جس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا، اور بحیثی جو اس معاملے میں دیکھنے کے لیے ہمیں نظر آئی. جو برطانیہ میں بسنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور الحمدللہ پوری دنیا تک اس کیس کو ہر گھر میں ہر لوگوں تک پہنچایا. یہ سوالات بنیادی طور پر اس بارے میں آتے ہیں کہ وہاں پر حصول انصاف کے لیے جو معاملات ہیں وہ درست سمت میں نہیں جا رہے. ایک تو یہ ہے. تو آج کی اس میٹنگ میں برمنگھم میں جب دوست اکٹھے ہوئے تو اس میں یہ ایک بات پورے شد و مد سے اس بات پر واضح کیا گیا کہ ہماری یہ جو ایکشن کمیٹی ہے یہ کنٹینیوسلی اپنا سفر جاری رکھے گی. ہماری جو کشمیر کی بیٹی کنول مطلوب کے ساتھ جس طرح اس بچی کے ساتھ درندگی کی گئی، اس والے سے مشاورت جاری ہے. تو ملزم تو پکڑا گیا، ملزم سے مجرم بن گیا. اب تو ہماری جو ہے ایز اے کشمیری جو ہے وہ پرزور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کنول مطلوب کے کیس کو جلد سے جلد جو ہے وہ نمٹا کر ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. مظلوموں کا ساتھ دینے اور بے آواز لوگوں کی آواز بننے کے لیے الیکشن کمیٹی کے ممبران پرعزم دکھائی دیے. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. Stay with us. Motivated to excel? We want you to achieve your maximum potential with strong support systems and our excellent learning environment. Enroll today at Scholar School System University College Centre. حلال ہیون بچرز، جہاں آپ کو ملے 100% محفوظ اور حلال گوشت، HMC سرٹیفائیڈ. آپ کی صحت ہماری اولین ترجیح. حلال ہیون بچرز میں ہر قسم کا تازہ گوشت روزانہ کی بنیاد پر مہیا کیا جاتا ہے، اب آن لائن ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ. آرڈرز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0121 220 3909 930 اسٹریٹفورڈ روڈ برمنگھم B11 4BT. حلال ہیون بچرز، برمنگھم's فرسٹ چوائس. UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں. ایک مکمل گھر کی ضرورت. UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ B6 4EX. فون نمبر 0121 448 1530. جی، اور آپ کو بتائیں کہ سینٹرل لندن میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسلامی عقائد اور یقین محکم پر گفتگو کی گئی. برطانیہ بھر سے علماء کرام اور مشائخ عظام نے کانفرنس میں شرکت کی، جہاں برطانوی نوجوانوں کو روز قیامت اور اسلامی عقائد سمیت تمام ضروری احکامات پر لیکچرز دیے گئے. مزید جانیں گے وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں.
वस्ती लंदन के इलाके स्टॉकवेल के मकामी ख़त्म नबूवत सेंटर में सालाना ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से उलमाए कराम और मशाइख उज़्ज़ाम समेत इस्लामी तालीमात पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर्स ने शिरकत की। हाफिज़ नगीन, ताहा कुरैशी, मोहम्मद यूनस, मुफ्ती असलम, मुफ्ती खालिद समेत ख़त्म नबूवत सेंटर के दीगर मुंतज़मीन के ज़ेर निगरानी मुनक़िदा इस सालाना कॉन्फ्रेंस में बरतानवी मुसलमानों के लिए उर्दू और अंग्रेज़ी में इस्लामी लेक्चर्स और अहकामात इलाही पर मबनी फरमुदात का अहतमाम किया गया, जिसमें हर उम्र के मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की और इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू सुनी और क़यामत से पहले इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर और दज्जाल के खिलाफ नबरद आज़मा होकर इस्लाम का अलम बुलंद करने से मुतालिक फरमुदात को जिंदगी का अव्वलीन मकसद बनाने का अज़म जाहिर किया। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मौलाना तकी उस्मानी ने ऑनलाइन हाज़रीन से खिताब किया, जबकि शेख सूफ़ी शेख बिलाल पटेल, मुफ्ती जावेद इकबाल, मुफ्ती मुमताजुल हक, प्रोफेसर यासीन, मुफ्ती मोहम्मद अमीन, अलामा ज़फ़रुल्लाह शाह, पास्टर प्रिंस कमांडा ने कॉन्फ्रेंस में मौजूद हाज़रीन से तफसीली गुफ्तगू करते हुए कहा कि मगरिब हो या मशरिक, अकायद को दुरुस्त और आसान ज़बान में नौजवानों तक पहुँचाना ज़रूरी है। उनका कहना था कि तमाम मुसलमान इस बात पर बिला तफरीक मुत्तफ़िक हैं कि खुदावंद आलम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत को ख़त्म कर दिया और दीन को मुकम्मल करते हुए फरमुदात इलाही पर अमल पैरा होने की ताकीद कर दी है। इसका मकसद अपनी अवाम के अंदर आगाही पैदा करना होता है, ताकि आम जो वालदैन हैं उनको भी पता चले कि ख़त्म नबूवत की अहमियत क्या है। तो जब वो वालदैन ही नहीं समझेंगे तो औलाद को वो नॉलेज कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसलिए हम नौजवानों को भी बुलाते हैं, वालदैन को भी बुलाते हैं, ताकि अकीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत को समझ सकें। जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इनका मकसद ये है कि अपनी नस्ल को, अपनी जनरेशन को एजुकेट किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, बताया जाए हर कम्युनिटी का कि वो अपना अकीदा रखे। लेकिन जब कन्फ्यूजन हो कि इस्लाम की जो तस्वीर है उसको कोई दागदार करना चाहे तो हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम चाहे इधर हों, मगरिब में हो या मशरिक़ में हो, अपनी नस्ल को एजुकेट करने के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी को सही अकीदा कि ख़त्म नबूवत क्या है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। अब हज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। जो अब दावा करे कि मैं नबी हूँ, हमारे नज़दीक वो झूठा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ यहाँ पे, लेडीज़ भी, बच्चे भी और यंग जनरेशन भी आई, बहुत अच्छा इत्माम था। ये ज़रूरी है कि अपने नबी की पहचान, अपने नबी, ताकि उसके ज़रिए हम अपने आप को पहचान सकें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, ख़ुद भी अमल करें और फिर दूसरों को भी बताया जाए। ख़त्म नबूवत पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक अकीदा है कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस पे पूरी उम्मत जो है वो मुत्तफक है। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अकीदा की दुरुस्तगी और सिम्मत की तालीमात को इंतहा पसंदी ना समझा जाए। मुसलमान तमाम इस्लामी अहकामात की पासदारी के लिए मुत्तफिक और अमल करने का हक रखते हैं। ख़ास तौर पर बरतानिया में नौजवानों को अकीदा समझाने की अशद ज़रूरत है। ईदी फाउंडेशन की जानिब से एक और फलाही कदम, बरतानिया में मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी के फर्जंद फैसल ईदी ने बरतानिया के मशहूर इमिग्रेशन सोलिसिटर इनाम राना की फ़र्म के साथ फलाही मुआहिदा तय कर लिया। इस हवाले से सेंट्रल लंदन में मुनक़िदा तकरीब का अहवाल बताएंगे वसीम काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। वस्ती लंदन के मकामी होटल में ईदी फाउंडेशन बरतानिया और सोलिसिटर इनाम राना के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को ईदी फाउंडेशन बरतानिया और जूलिया एंड राना फर्म के साथ फलाही मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया गया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि बरतानिया में बढ़ती हुई तारकीन वतन की तादाद और कानूनी मुआवनत महंगी होने की सूरत में ईदी फाउंडेशन बरतानिया और मरूफ सोलिसिटर इनाम राना की फर्म जूलिया एंड राना के इश्तराक से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसकी मदद से ओवरसीज पाकिस्तानियों के कानूनी मसाइल के हल के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद मुहैया की जाएगी। इस मौके पर फैसल ईदी और इनाम राना समेत साबिक मेयर हाउंसलो मलिक निसार और अकरम कायम खानी ने बताया कि बरतानिया में मुकीम तारिकीन वतन को रोजाना की बुनियाद पर कानूनी मसाइल का सामना है, जिसके लिए हुकूमत बरतानिया की जानिब से कोई खास कानूनी मुआवनत मौजूद नहीं है। यही वजह है कि ईदी फाउंडेशन ने बरतानिया में मौजूद कानूनी माहिरीन की मदद से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करने की कोशिश की है जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये लीगल एड का जो है वो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे यूके में शुरू किया है। ये पैंडेमिक के दौरान यहाँ पे बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स थे जो यहाँ पे रह रहे थे यूके में, जो इलीगल भी थे, उनकी फ़ाइलिंग के लिए और फिर क्योंकि सारा लॉकडाउन हो गया था तो उनके इवन खाने पीने के बहुत सारे इश्यूज़ आए थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मंजर पे आई थी कि इनको मदद की ज़रूरत थी। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे एक लीगल एड सेक्शन को जो है वो शुरू किया है और हमारा जो मकसद है सिर्फ यूके को हमने यहाँ से स्टार्ट तो किया है, लेकिन
इसको हम फैला के पूरे यूरोप तक ले जाएंगे। आई एम रियली थैंकफुल टू एदी फाउंडेशन, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग स्पेशली कोरोना के बाद से वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो लीगल फ़ी जो है वो अपनी कवर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एदी फाउंडेशन सामने आई है और उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है। वी विल बी एक्टिंग फॉर देम, और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू स्टार्ट विद यूके, और फिर वो चाहते हैं बल्कि इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं। ईदी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी सबसे बड़ी चैरिटी है, और उसने साबित किया है अपने काम से कि वो लोगों से सिंसियर है और बग़ैर किसी फ्रॉड के, किसी बेईमानी के सारा का सारा पैसा जो डोनर्स देते हैं वो लोगों पे लगता है। तो आज ये बरतानिया में बहुत बड़ा दिन है कि हम एक नया स्टेप ले रहे हैं और बरतानिया के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट शुरू करें। मैं ईदी के ऑपरेशंस यहाँ यूके में मैनेज करती हूँ, एंड मुझे उम्मीद है कि ये लीगल सपोर्ट प्रोजेक्ट जो हम जूलिया एंड राना के साथ ईदी फाउंडेशन मैनेज करने की हम इंशाल्लाह हिम्मत कर रहे हैं। इट विल बी अ सक्सेस फॉर अस, एंड होपफुली वी गेट द सपोर्ट फ्रॉम डोनर्स इन द यूके एंड इंटरनेशनली। प्रेस ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि ईदी फाउंडेशन ने कराची में मुफ्त कानूनी मुआवनत के इकदाम के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया में मुख्तलिफ लीगल फर्म्स के साथ मिलकर फलाही मुआहदा किया है, जिसमें जूलिया एंड राना फर्म सरे फहरिस्त है। फैसल ईदी का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी लंदन और गिरदोनवा के ओवरसीज पाकिस्तानियों को बाकायदा मुफ्त कानूनी मुआवनत का आगाज कर दिया जाएगा, और कानूनी मसाइल में घिरे हुए ऐसे लोग जो भारी भरकम फीसें अदा नहीं कर सकते वो इनाम राना और उनके स्टाफ से बराह रास्त राब्ता कर सकेंगे। जी और खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से, जहां अफगानिस्तान में तालिबान हुकाम ने कहा है कि मुल्क में तवील सफ़र करने वाली ख़वातीन को अकेले सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। इस सूरत में उनके साथ किसी करीबी मर्द रिश्तेदार का होना लाजमी है। तालिबान हुकाम ने कहा है कि जो ख़वातीन अकेले तवील सफ़र करना चाहती हैं उन्हें सफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं मिलेगी। ये हिदायत तालिबान की वजारत बराए अखलाकियात और बुराई की रोकथाम की जानिब से की गई। इसके अलावा गाड़ियों के मालिकान से भी कहा गया है कि वो किसी भी बगैर हिजाब के खातून को अपनी गाड़ी में बैठने की इजाज़त नहीं देंगे। जबकि ख़वातीन के अकेले सफ़र करने पर भी पाबंदी के अलावा तालिबान हुकाम ने मुल्क में मौसीकी और टेलीविजन सीरियल्स के हवाले से भी अहम फैसले किए हैं। आइंदा से लोग अपनी गाड़ियों में मौसीकी नहीं चलाएंगे। इससे कबल तालिबान ने टीवी चैनल्स को हिदायत जारी की थी कि वो अपने चैनल्स पर ऐसे ड्रामे दिखाना बंद कर देंगे जिनमें खवातीन अदाकारी करती हों। इसके साथ साथ न्यूज़ से वाबस्ता खवातीन टीवी सहाफ़ियों को बताया गया कि वो हिजाब के बगैर टीवी प्रोग्राम पेश नहीं कर सकती। वाज़ेह है कि रवां बरस 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा के बाद तालिबान ने यह कहा था कि वो अपने पहले दौरे हुकूमत की तरह इस मरतबा खवातीन के हवाले से सख्त पॉलिसियां नहीं अपनाएंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। ईरान के साथ तवील सिफारती जंग के बाद इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि अगर कोई और मुल्क तैयार न भी हुआ तो अकेले ही ईरान पर हमला कर देंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी पहली तरजीह ईरान पर आलमी कुव्वतों के साथ मिलकर हमला करने की है, ताहम ज़रूरत पड़ी तो अकेले भी हमले के लिए तैयार हैं। उन्होंने डिफेंस कमेटी को ब्रीफिंग में मजीद बताया कि हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, अपना दिफा खुद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यार प्लीद ने यह भी कहा कि हम अपने दोस्त ममालिक को ईरान के जोहरी मंसूबे की इंटेलिजेंस रिपोर्ट फराहम कर चुके हैं, जो हमारी ज़ाती राय नहीं बल्कि ठोस हक़ाइक़ हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने वियना में अमरीका और ईरान के दरमियान जोहरी मुआहदे पर होने वाले मुज़ाकरात के नए दौर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ईरान का मकसद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अमरीकी पाबंदियों के खात्मे से अरबों डॉलर्स हासिल करेगा, जिससे जोहरी मंसूबे की तकमील और शिया जंगजुओं की माली इमदाद करेगा। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से, जहां आईसीसी ने पाकिस्तान के मायनाज बल्लेबाज और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान समेत 4 खिलाड़ियों को क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामजद कर लिया है। आईसीसी ने T20 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। क्रिकेटर ऑफ द ईयर में आईसीसी ने पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान समेत 4 खिलाड़ियों को नामजद किया है। दीगर खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, इंग्लैंड के जोस बटलर और श्रीलंका के हसा रंगा भी हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मायनाज बल्लेबाज और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने अपने T20 कैरियर के 55 मैचेस की सिर्फ 44 इनिंग्स में 51.21 की औसत से 1639 रन बना रखे हैं, जिसमें 1 सेंचुरी और 13 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। उन्होंने इस साल 42 छक्के और 119 चौके लगाकर न्यूजीलैंड के जारे मिजाज बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल को भी पीछे छोड़ दिया। और सबसे मकबूल तरीन ऑनलाइन सर्विस होने की दौड़ में टिकटॉक ने गूगल को भी पीछे छोड़ दिया। रवां साल जुलाई तक तकरीबन 3 अरब से ज्यादा मरतबा डाउनलोड की गई।
IT सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर के मुताबिक मुख्तसर वीडियो के इस ऐप पर यौमिया अमरीकी सर्च इंजन से ज़्यादा सार्फिन आते हैं। रैंकिंग के मुताबिक टिकटॉक ने रवा साल फरवरी, मार्च और जून में गूगल से यह मकाम छीना और अब अगस्त से यह सरे फहरिस्त है। गुज़श्ता साल गूगल नंबर 1 पर थी, जबकि टिकटॉक, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स तीनों टॉप 10 में थे। डाटा कंपनी सेंसर टावर के मुताबिक टिकटॉक रवा साल जुलाई तक 3 अरब से ज्यादा मरतबा डाउनलोड की जा चुकी थी। चीनी कंपनी बाइडांस की मिल्कियत इस ऐप पर दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा फ़ाल सारिफ मौजूद हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। जबकि रवा साल चीन ने हुक्म जारी किया है कि 14 साल से कम उम्र बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर यौमिया 40 मिनट वक्त बिता सकेंगे। टिकटॉक सन 2018 में बैनुल-अक़वामी तौर पर लॉन्च की गई थी और ये एक चीनी सोशल मीडिया कंपनी म्यूजिकल.ly से इंजमाम के जरिए वजूद में आई, जिसमें सारिफिन गानों के बोल पर अपने होंठ हिलाकर अदाकारी कर सकते हैं। साल 2021 ख़त्म होने को है। इस साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर से बहुत सी शोबिस की शख्सियात इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गईं, लेकिन उनके काम और उनकी फ़नकाराना सलाहियतों को तारीख़ में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। वाकई इस बरस हमारे कितने अजीज़ और चाहने वाले उस देश चले गए जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। आज हम शोबिस से वाबस्ता उन पाकिस्तानी और आलमी शख्सियात का तस्करा करेंगे जो 2021 में हमसे बिछड़ गईं, लेकिन अपने कामों की वजह से हमेशा चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगी। सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रांझा अदाकार एजाज दुरानी तवील अलालत के बाद 1 मार्च को इंतकाल कर गए। एजाज दुरानी ने अपने फिल्मी कैरियर में 150 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उनकी मकबूल फिल्मों में डाकू की लड़की, गुलबदन, इज्जत, वतन, फरिश्ता और शोले समेत कई दीगर शामिल हैं। रोमानवी हीरो एजाज दुरानी ने मलका तरन्नुम नूरजहां और मकबूल अदाकारा फिरदौस बेगम से शादी की। वो 1935 में जलालपुर जट्टा में पैदा हुए। पाकिस्तान की पहली टीवी मेजबान कंवल नसीर ज़ियाबितस के मर्ज में मुब्तला थीं। वो पाकिस्तान की पहली खातून थी जिन्होंने 26 नवंबर 1964 को मारूफ मेजबान तारिक अजीज के साथ पाकिस्तान टेलीविजन पर पहली बार मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए थे। कंवल नसीर ने पीटीवी पर पहली बार ये ऐलान किया था कि ये पाकिस्तान टेलीविजन है। उनके दिल में उतर जाने वाली आवाज 25 मार्च को हमेशा के लिए खामोश हो गई। कंवल नसीर रेडियो और टीवी से 5 दिहाइयों से ज्यादा अरसा से वाबस्ता रहीं। उन्होंने महज 17 बरस की उम्र में कैरियर का आगाज किया। वो 23 जनवरी 1943 को लाहौर में पैदा हुई थी। शहजोरी, जेर जबरपेश, अंकल उर्फी, अनकही, आंसू, बंदिश, आईना जैसे शोहरा आफाक ड्रामों की मुसन्निफा, मारूफ ड्रामा नवीस और मुकालमा नगार हसीना मोइन 89 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने की वजह से रवा साल 26 मार्च को खालिक के हकीकी से जा मिली। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्में भी लिखी, जबकि मारूफ भारतीय अदाकार और प्रोड्यूसर राज कपूर की ख्वाहिश पर उनकी फिल्म हिना के लिए मुकालमे तहरीर किए। हसीना मोइन ने बहुत से ममालिक का दौरा किया और मुतादिद अवार्ड्स जीते। 1987 में उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स की खिदमत पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। वो 20 नवंबर 1941 को कानपुर, इंडिया में पैदा हुई। अल्लाह सबनू देवे ओ गल सुन छलिया ओ कामा ए बागी ठंडिया छामा। पुरस्सर आवाज के मालिक मारूफ फोक गुलकार शौकत अली भी रवा बरस इंतकाल कर गए। शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। पाकिस्तान में मौसीकी के लिए उनकी खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1990 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज से नवाजा था। शौकत अली को अपनी जिंदगी में कई एजाजात से नवाजा गया। वो 3 मई 1944 को लाहौर में अंदरून भाटी गेट में पैदा हुए। दिल टूट जाए सुबह का अखबार देखकर, दिल टूट जाए सुबह का अखबार देखकर, दिल टूट जाए सुबह का अखबार देखकर, सब झूठ लगे शाम का बाजार देखकर। पुतली तमाशा और अंकल सरगम के खालिक हकीकी फारूक कैसर भी इस बरस 14 मई को चल बसे। फारूक कैसर 31 अक्टूबर 1945 को लाहौर में पैदा हुए। पाकिस्तान में 1970 से 1990 की दिहाई में जब केबल टीवी और कार्टून नेटवर्क का दौर नहीं था, तब अंकल सरगम ही थे जिन्हें टीवी पर देखने के लिए बच्चे बेताब रहते थे। पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा नायला जाफरी कराची में कैंसर के मोहलिक मर्ज से जंग हार गईं। नायला जाफरी गुज़श्ता 6 साल से कैंसर में मुब्तला थीं। उन्होंने मुतादिद टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके मशहूर ड्रामा सीरियल्स माँ मुझे सुलाना, देसी गर्ल्स और थोड़ी सी खुशियाँ वगैरह शामिल हैं। मैं एक दफा मलवार में भी पैदा हुआ था। क्या मतलब है? हाँ, मैं पहले ईरान में पैदा हुआ ना, वहाँ भट्टे हो रहे थे।
तो मुनासिब नहीं समझा, फिर मलबार में भेजा। मुस्कुराहटों को जिंदगी बख्शने वाले, कहकहों को अमर करने वाले, दुखी दिलों को पल भर में हंसा देने वाले उमर शरीफ भी रवाबर सबको रुला गए। लेजेंडरी अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ काफी अरसे से आर्ज़े कल्ब, गुर्दे और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामों के खालिक उमर शरीफ के मकबूल स्टेज ड्रामों में दुल्हन मैं लेके जाऊंगा, सलाम कराची, अंदाज अपना अपना, उमर शरीफ इन जंगल और चौधरी प्लाजा वगैरह शामिल हैं। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ हैं। रवां सदी के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार 98 बरस की उम्र में 7 जुलाई को मदाहों को अलविदा कह गए। उन्होंने अदाकारी की हर सिन्फ में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कॉमेडी की तो सिनेमा कहकहों से गूंज उठा, ड्रामाई अदाकारी की तो चाहने वाले सहर में मुब्तला हो गए, रोमांस किया तो ख्वाबों के शहजादे बन गए और ट्रेजेडी की तो देखने वालों को अश्क बार कर दिया। गर्ज हर अंदाज़े अदाकारी में अपने सलाहियतों को साबित किया। 5 दिहाइयों पर मुहित एक मुतासिर कुन कैरियर के साथ दिलीप कुमार ने सिनेमा पर राज किया। भारतीय अदाकार और मारूफ रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के फाते सिद्धार्थ शुक्ला भी इस बरस दिल का दौरा पड़ने से 2 सितंबर को इंतकाल कर गए थे। ये मशहूर मारूफ शख्सियात बज़ाहिर इस दुनिया से रुखसत हो गईं, लेकिन अपने काम की वजह से हमेशा मद्दाहों की यादों में जिंदा रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।